Hi, good morning, students. In my previous lecture on IPC, we were on the topic of offenses which concern the mind. We found that defamation was something which affects the mind, it affects the reputation of a person, and it's the most distressing thing for any person to have harm to his reputation. We saw the entire law of defamation. We then went on to the next part, which again deals with the offenses against the mind. We had criminal intimidation. In criminal intimidation, which was defined in section 503, the basic aspect was a threat to cause alarm or to make him do something which he otherwise would not have done. It was punishable in 506. Also, we saw two different types of criminal intimidation, one in 507 as well as in 508. We then came on to insults. Insults to the person in order to make him break law or to commit an offense was section 504. Insult to the modesty of a woman was 509. We now come to the third insult, which is basically insulting the sentiments of a community. This is one section as a policeman I have used many times and very successfully. Let's go through this because we use certain sections, offenses against communities, section 153A, 153B and 505. ये तीन हम करते हैं. मैं after I finish this whole part, then I'll be coming to offenses against religion. थोड़ा से है वो. So let's first go through section 505, which now tells us an insult and hurting the sentiments of other communities. 505. Statements conducing to public mischief. Now, public mischief here because no good is being done to another. There is no wrongful gain. There is only wrongful loss. जब भी हम कोई communities को भड़काते हैं तो हमेशा एक loss होता है. फायदा हो सकता है कोई political mileage मिले या ऐसा कोई मिले. But then as we saw, S. Dutt had made it clear that dishonestly or wrongful loss or wrongful gain is always in material terms. मुझे कोई political mileage मिल रहा है या मैं कोई नेता बन रहा हूँ, वो wrongful gain, wrongful loss की परिभाषा में नहीं आता है section 24 dishonestly में. Okay, so coming back to our section 505, whoever makes, publishes or circulates any statement, rumor or report. Makes, publishes or circulates any statement. This statement may be true. Please remember, the word rumor shows it may not be true. It is hearsay. Statement can deal with real true matters also. Doesn't matter. Or report. So these statements or reports may or may not be true. Rumors, of course, may not be true. So इसमें याद रखना है कि जहां पे आप सिर्फ आग लगाने के लिए बता रहे हो. You know, I remember there was a incident. I can't share much incidents of my police career. एक मैं आपसे बात करना चाहूँगा. You know, there was a case in one of the districts where I was SSP. वहाँ पे एक one of the revered animals of one community was harmed by the other community. और एक नेताजी इस चीज पे कैश इन करना चाहते थे और माइक ले लिया, स्कूटर रिक्शा एक ले लिया और अब वो बोलने शुरू हो गए. दैट इज पशु का ऐसा हुआ. उससे नेचुरली इन्फ्लेम हो रही थी. नाउ फैक्ट तो सही था, दैट एनिमल वॉज हार्म्ड, बट देन what he was doing, though the matter was true, would fall under maybe 153A, B and now 505. So please remember, इसमें जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ झूठ की बात कर रहे हैं, सच्ची बात भी हो सकती है. बट सच्ची बात का मतलब ये थोड़ा ना कि आप आग लगाओगे या आप कम्युनिटीज को आपस में लड़वा दोगे. That we will not allow you. So that is what it says here. Whoever makes, publishes or circulates any statement,
र्यूमर और रिपोर्ट। ए, अब 3 इंटेंशंस हैं यहां पे। A with an intent to cause or which is likely to cause any officer, soldier, sailor or airman in the Army, Navy or Air Force of India to mutiny or with otherwise disregard or fail in his duty as such। अब कोई भी ऐसी कोई चीज बोलता है, पब्लिश करता है, सर्कुलेट करता है, कोई ऐसी रिपोर्ट या कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई र्यूमर जिससे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में रिवोल्ट हो जाए या वो अपना काम करना बंद कर दे, तो वो यहां कवर हो रहा है। ए। बी, सेकंड उसकी है और विद एन इंटेंट टू कॉज और विच इज लाइकली टू कॉज फियर और अलार्म टू द पब्लिक, या फिर पब्लिक में एक दहशत हो जाए, और टू एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक whereby any person may be induced to commit an offense against the state or against public tranquility। अब यहां पे मैं ऐसी चीज फैलाता हूं जो एक फियर या एक अलार्म कर दे पूरी पब्लिक को, और उस डर के मारे, उस अलार्म में वो अब क्या करती है, वो ऑफेंस कर देती है स्टेट के खिलाफ या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के खिलाफ। इसमें कायदे से देखा जाए तो सब कुछ आ रहा है। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। Whoever makes, publishes or circulates any statement, rumor or report which will spread fear or alarm, कहां पे? To the public or to any section of the public। जो मैं स्टेटमेंट, र्यूमर या रिपोर्ट पब्लिश कर रहा हूं या सर्कुलेट कर रहा हूं, उसे पूरी पब्लिक में डर का माहौल आ जाएगा या एक कम्युनिटी में डर का माहौल आ जाएगा, और उस डर की वजह से ही विल बी इंड्यूस्ड कि वो स्टेट के खिलाफ ऑफेंस करे। अगर स्टेट के खिलाफ नहीं है कम से कम, तो पब्लिक पीस के खिलाफ करे। इसका मतलब है जो भी भड़काते हैं कि चलो प्रॉब्लम डालें, सी 153 और ए बी भी इस तरह के ही हैं, पर वो स्पेसिफिक कम्युनिटीज, रिलीजियस कम्युनिटीज, रीजनल कम्युनिटीज से डील करते हैं। ये इसका दायरा बहुत बड़ा है। कोई भी अगर फियर या अलार्म क्रिएट करता है पब्लिक में या कोई भी कम्युनिटी में ताकि वो अब कोई ऑफेंस करे, फॉर एग्जाम्पल ये एग्रीकल्चर का मामला चल रहा है, अगर कोई भड़काएं ताकि वो पब्लिक पीस तोड़ें या और कोई भी रिलीजियस हो, रीजनल हो, कोई भी हो, मैं कहता हूं स्टूडेंट लीडर्स हो, चलो कम्युनिटी स्टूडेंट लीडर्स, वो ऐसा कोई डाल देते हैं जिसे सब भड़क जाते हैं डर के मारे, और डर जाते हैं या अलार्म हो जाते हैं, और अब भड़क के वो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। 505 लगेगा उसमें। सो प्लीज रिमेंबर 505 का जो क्लॉज 2 है उसका दायरा किसी पे भी डील करेगा जो भी कोई ऐसी स्टेटमेंट मेक, सर्कुलेट्स और पब्लिशेस या रिपोर्ट या र्यूमर जिससे पब्लिक में डर का माहौल हो या अलार्म हो जाए, इतने अलार्म हो जाएं कि वो अब ऑफेंस करने शुरू कर दें पब्लिक पीस के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ। इट इज कवर्ड बाय 505। Third, with an intention to incite or which is likely to incite any class or community of persons to commit any person against any other class or community। अब आ गया कम्युनिटी या क्लास। एक कम्युनिटी को या एक क्लास को, क्लासेस बहुत सारी हो सकती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, कोई भी, आपस में दो कम्युनिटीज को लड़वा दिया। इनसाइट्स व्हाट? इनसाइट्स टू कमिट एन ऑफेंस। तो जहां पे भी भड़काते हैं कोई भी चीज के लिए कोई कम्युनिटी को या कोई क्लास को, सिर्फ क्या करना है,
to commit an offense against another class or community. यहां पे ऑफेंस पब्लिक पीस के खिलाफ नहीं है दूसरी। तो जहां पे कोई ऐसे भाषण दे रहे हो आप जिसमें पब्लिक भड़क गई और दूसरी कम्युनिटी को अब ऑफेंस करने के लिए अब आमदा हो गई, तो नाउ इट इज। तो 3 पार्ट्स हैं, प्लीज रिमेंबर। एक आर्मी से डील करता है, एयरफोर्स एंड नेवी से, आर्म फोर्सेस से। अगर आप कुछ ऐसा चीज सर्कुलेट करते हो जिससे वो रिवोल्ट कर जाएं, या फिर वो अपना काम करना बंद कर दें, या फिर पब्लिक में अलार्म फैला रहे हो ताकि वो अब कोई ऑफेंस करने में आमदा हो जाए स्टेट के खिलाफ, या कोई भी पब्लिक पीस के खिलाफ कुछ करे, या कम्युनिटी को भड़का रहे हो ताकि वो दूसरे कम्युनिटी को अटैक करे और ऑफेंस करे, shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or fine. अब इसमें 3 साल की सजा है या फाइन है। पैरा 1 की सजा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में जाइए। 3 years imprisonment नॉन कॉग्निजेबल है ये, बट नॉन बेलेबल है, ट्रायबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट है, नॉन कंपाउंडेबल है। तो ये कंप्लेंट केस में जाएगा। उसमें नॉर्मली कंप्लेनेंट जो है वो पुलिस बनती है, या कई बार एसडीएम भी बन जाते हैं, डिपेंड्स, बहुत सारे लोग बन जाते हैं। आई होप आई एम क्लियर ऑन द फर्स्ट पैरा ऑफ 505. Clause 2 now deals with communities. Let's go to clause 2. Whoever makes, publishes or circulates any statement or report containing rumor or alarming news with intent to create or promote, or which is likely to create or promote on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community, or any other ground whatsoever, जो भी व्यक्ति एक्यूज्ड पब्लिश करता है, मेक करता है, सर्कुलेट करता है एनी स्टेटमेंट और रिपोर्ट विच कंटेन्स आइदर रूमर्स और ट्रू थिंग्स बट विच आर अलार्मिंग, इंटेंशन है टू क्रिएट और प्रमोट, किन के बीच में? रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, ग्रुप्स जो प्लेस ऑफ बर्थ से बटे हुए, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडियंस वर्सेस साउथ इंडियंस, रेजिडेंस नॉर्थ ईस्ट के लोगों वर्सेस इधर के लोग, लैंग्वेज, लैंग्वेज का बड़ा फर्क है, कास्ट, कास्ट इंडियन में बहुत ज्यादा है, या कम्युनिटी, या कोई भी कम्युनिटी, और एनी अदर ग्राउंड व्हाटसोएवर, फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, हेट्रेड और इल विल between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities shall be punished with 3 years. या फिर कोई भी अगर ऐसी रिपोर्ट आपस में सर्कुलेट करता है जो कोई भी हमारे इंडिया में कोई क्लास, कास्ट, कोई रिलीजन, कोई एरिया वाइज कोई भी फूट डालता हो, यहां पे बेसिकली द इंटेंट इज टू क्रिएट और प्रमोट इल विल। तो इल विल जहां बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट्स, क्लासेस, ये हमारा क्यों है? सेक्शन 505, इफ यू नोटिस, इट केम अप लेटर, सब्स्टिट्यूट हुआ था ये 1898 में, 1898 में। उसके बाद ये हमारा अमेंडमेंट आता है 1969 में। वी हैव अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स ऑन दिस। उसका रीजन ये है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रियम्बल में एक वर्ड यूज होता है, फ्रेटर्निटी। इंडिया का जो एक सबसे बड़ा फैब्रिक का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंडियन फैब्रिक का, इंडियन सोसाइटियल फैब्रिक का, वो है हमारा सेक्युलरिज्म। और जहां पे फ्रेटर्निटी नहीं है वहां पे इंडिया बहुत जल्दी टूट जाएगा। हम एक बार देख चुके हैं डिसमेंबरमेंट ऑफ इंडिया इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अभी भी हमारे यहां पे, चाहे इंडिया कितना हेट्रोजीनियस कंट्री है, हम कहते तो हैं हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है,
पर क्वेश्चन ये उठता है, क्या सारी माइनॉरिटीज अपने आप को सेफ फील करती हैं इंडिया में? क्या सारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, डू दे फील वन विद इंडिया? डू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फील कंप्लीटली at one, being one with इंडिया? क्या साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस के बीच में कोई खाई नहीं है? एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसेज था, that we should not be known by our religion, our caste, our class. We should only be known by one nationality, which is Indian. Everybody should be an Indian. Unfortunately, क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, क्लास पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स बहुत चलाई है। उसकी वजह से इंडिया कुड नॉट ग्रो इनटू अ सुपर पावर। बीइंग इन पुलिस, आई हैव सीन सो मेनी राइट्स जो बहुत फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे होते हैं, और उन फ्लिम्जी ग्राउंड्स की वजह से बहुत सारी जानें जाती हैं, पुलिस फायरिंग्स होती हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, और नॉट ओनली आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, एक मन मुटाव हो जाता है। वाई शुड वी बी अवेयर कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये मुसलमान है? वाई कांट वी फर्स्ट थिंक दैट ही इज एन इंडियन? ये जब तक ये डिस्पैरिटीज आपस में खत्म नहीं होंगी, इंडिया कैन नेवर बी अ स्ट्रॉन्ग नेशन। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, अभी हम देख चुके हैं रिसेंटली यूएस में ब्लैक्स वर्सेस वाइट्स, वो जो मार दिया था पुलिस ऑफिसर ने, वो आदमी, कितना आग लगी। इनफैक्ट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट ट्रम्प का लॉस उसी एंगल से हुआ। इसीलिए अगर कोई ऐसी चीजें फैलाता है, penal law must come up to now punish him. और ये जो अभी हमने पढ़ा है, दिस इज बेसिकली एन एक्सरसाइज इन दिस मैटर कि जो भी अगर ऐसी कोई इलविल या हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको पनिश किया जाएगा 3 साल से। सो जो कम्युनिटीज, चाहे वो रेशियल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो क्लास बेस्ड हो, चाहे वो रीजन बेस्ड हो, कोई भी हो, उनमें अगर वो फूट डालने की या आपस में हेट्रेड फैलाने की कोशिश करेगा, तो कायदे से वो हमारे प्रियम्बल के ही खिलाफ है, जो फ्रेटर्निटी को बेस रखता है। सो इट इज इन दिस कंटेक्स्ट दैट दिस सेक्शन, दिस पार्ट ऑफ द सेक्शन मस्ट बी रेड। नाउ व्हेन वी कम टू क्लॉज 3, ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2, कमिटेड इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब जहां आप इलविल और हेट्रेड प्लेस ऑफ वर्शिप में फैला रहे हो, ये तो बहुत ही सीरियस मामला है। कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा साहब है, आप वहां पे ये चीज फैला रहे हो, ये तो डेफिनेटली लीड टू राइट्स। और मैंने देखे हैं एज ए पुलिसमैन, हजारों राइट्स इसी बात पे होते हैं। इसलिए एज ए पुलिसमैन वी यूज्ड टू बी वेरी स्केर्ड ऑफ जितने भी हमारे रिलीजियस फेस्टिवल आते हैं। जैसे कोई मुसलमानों का आ रहा है, कोई हिंदुओं का आ रहा है, हमें यही डर होता था दूसरी कोई कम्युनिटी कोई ऐसा स्पार्क ना लगा दे जिसमें राइट्स हो जाए। इसीलिए अगर यही चीज जो इलविल फैला रहा है, वो अगर कोई मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा साहब या कोई ऐसी चीज में फैला रहा है, तो देन देयर इज अ पनिशमेंट हियर। Whoever commits an offense specified in subsection 2 in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of a religious worship. अब एक जगह नहीं है, प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, वो कहीं भी नमाज अदा करते हैं, जो 5 नमाजी होते हैं, वो जहां होते हैं वहीं पे कर देते हैं। अब वहां इकट्ठे हो गए, वहां आपने ऐसा कुछ कर दिया, ये कवर हो रहा है। जरूरी नहीं है कि रिलीजियस प्लेस हो जहां लोग कोई भी रिलीजियस चीज को इकट्ठे होकर कुछ मना रहे हैं, इट कैन नाउ कवर दैट ऑल्सो। So whoever commits an offense specified in subsection 2 in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies shall be punished with now 5 years. इनके अंदर अगर हम देखें द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, पैरा 1 का 3 साल नॉन कॉग्निजेबल, बट पैरा 2 का 3 साल तो है और फाइन,
बट कॉग्निजेबल। अब इस पे और नॉन बेलेबल है ये सारे, इसमें बेल नहीं मिलती। एंड पैरा 3 5 years अगेन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो बहुत सीरियस ऑफेंसेस हैं ये, इनको बहुत हमें प्रॉपरली देखना है। अब वी हैव एन एक्सेप्शन विच इज अपेंडेड टू सेक्शन 505। The exception says it does not amount to an offense within the meaning of this section when the person making, publishing or circulating any such statement, rumor or report has reasonable grounds for believing that such statement, rumor or report is true and makes, publishes or circulates it in good faith without any such intent। ये इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे एक बात सच्ची है और वो अलार्म के लिए नहीं, वो वैसे ही बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है जो सच है, बट मेरी कोई इंटेंशन, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पत्रकार, मैं इस चीज को रिपोर्ट कर रहा हूं, तो कायदे से तो अगर ये चीज होती, अगर ये एक्सेप्शन ना होता, तो कोई भी पत्रकार, कोई भी न्यूज़पेपर जो ऐसी चीजें रिपोर्ट करते हैं, सब अंदर हो जाते। तो क्या चीज बचा रही है? सच है वो, पहली बात वो सच होनी चाहिए। आपने पब्लिश कर दी, सब जगह पता चल गया पर इंटेंशन नहीं होनी चाहिए मेरी कि मैं इलविल फैलाऊं। सो जहां मैटर ऑफ फैक्ट रिपोर्टिंग होती है, वहां पे हम उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे। इसलिए एक्सेप्शन को मैं दोबारा एक बार पढ़ूंगा, बहुत ध्यान रखना है। इट डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस। मैं एक पत्रकार हूं, मैंने एक चीज देख ली, मैंने उस चीज को रिपोर्ट कर दिया। Within the meaning of this section, when the person making, publishing or circulating any such statement, rumor or report has reasonable grounds for believing such statement, rumor or report is true and makes, publishes or circulates it in good faith after taking due care and caution। बिकॉज मेरा आर्टिकल 19 क्लॉज 1A मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, उसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं इस एक्सेप्शन से। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, विदाउट एनी इंटेंट एज अफोरसेड। हाउएवर, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए जो यहां पे बताई गई है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस सेक्शन। इट्स एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। और जो डिफरेंस है बिटवीन 153A, हम आएंगे बाद में, उसका डिफरेंस दिया गया। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, बिलाल अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। बिलाल अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों का डिफरेंस बताया गया है 153A एंड 505। सी उसमें क्या है, 153A में हम बाद में देखेंगे, पब्लिकेशन इज नॉट नेसेसरी। 505 में पब्लिकेशन इज द मस्ट। बस ये फर्क है, नहीं तो ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगा हमें, बस थोड़ा सा फर्क है। वहां हुएवर मेक्स, यहां पे पब्लिश करना जरूरी है, दूसरों तक पहुंचनी जरूरी है। ये बेसिक फर्क है 153A का। हम देखेंगे बाद में, इसको पढ़ेंगे 153 को। जस्ट कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड कि 505 का और 153A का फर्क बेसिक एक है। यहां पे यू मस्ट हैव पब्लिकेशन, 153A में पब्लिकेशन की जरूरत नहीं है। अब ये जो सेक्शंस हैं, ये सारे के सारे चैलेंज हुए थे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के खिलाफ है। So constitutional validity of section 505 was challenged in Kedarnath versus State of Bihar। वही जो मेरा सेडिशन वाला है, सेम क्वेश्चन, उसमें यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की थी, दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। तो इसीलिए आर्टिकल 19(1)A के अंदर जो क्लॉज 2 है उसका, वो ऑलरेडी अलाउ करता है मेरे फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रेंट की अलाउ करता है। ऑन द एनविल ऑफ दैट, ऑन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के एनविल में 505 खरा उतरता है। सो इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फाइन, वी आर क्लियर विद ऑल द सेक्शंस आई होप।
We go to the last section, which is section 510. 510 basically is a very interesting section, और इसके अंदर मिनिमम पनिशमेंट दी गई है. Let's see the punishment. Let's see the section. Whoever in a state of intoxication appears in a public place or in any place which it is trespass for in him to enter, and there conducts himself in such a manner as to cause annoyance. कौन सा लॉ आ गया अब? Annoyance का लॉ. To cause annoyance to any person shall be punished with a simple imprisonment for 24 hours. सबसे कम imprisonment का section है. Or with fine which may extend to 10 rupees or both. यहां पे अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड आदमी पब्लिक में आ जाए या कहीं ऐसी जगह जाए जहां पे बेसिकली दैट एक्ट विल बी ट्रेसपास, तो उसका एक्ट पनिशेबल है. 24 घंटे की सिंपल इंप्रिजनमेंट है या 10 रुपए तक का फाइन है. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नॉन कॉग्निजेबल है. लेट्स गो टू द क्लासिफिकेशन. Simple imprisonment for 24 hours, fine of 10 rupees or both, non-cognizable, bailable. दोनों है. इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है. Merely because a person appears in the public in a state of intoxication is not enough. And a word है. And does what? And there conducts himself in such a manner as to cause annoyance to any person. पब्लिक प्लेस में रात को वो 2 बजे निकल गया, सड़क पे चला गया. ठंड है आजकल, कोई नहीं है सड़क पे. He is not committing any offense under this section. पर अब वो बाहर आके ऊंचा ऊंचा चिल्ला रहा है, लोग उठ गए, अब annoyance हो गई. सो इसीलिए प्लीज रिमेंबर, इसमें annoyance करनी जरूरी है. The person has come in an intoxicated state, and in this state he is now creating annoyance to others. Now only it becomes an offense under this section 510. फिर हम कहते हैं अगर ये नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस गिरफ्तार कैसे करती है? वी फाइंड पुलिस अरेस्टिंग जो दारू पी के घूम रहे होते हैं, उठा के ले जाते हैं, और ये तो नॉन कॉग्निजेबल है. यहां तो हम उनको अरेस्ट करते हैं 151 में सीआरपीसी में. या हमारे पास एक और लॉ है जो अगर दारू पी के कोई मिले हमें तो उसको हम गिरफ्तार कर सकते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एंड दैट इज सेक्शन 34 पुलिस एक्ट. 34 पुलिस एक्ट में जिन जिन स्टेट्स ने अप्लाई किया हुआ है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव अप्लाइड दैट लॉ, तो उसके अंदर कोई भी पुलिस वाला इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस नाउ. अब वो उसको उठा सकता है और उसमें सजा भी ज्यादा 7 दिन है. तो इसीलिए हम 510 में कभी नहीं जाते, क्योंकि जा ही नहीं सकते, अरेस्ट भी नहीं कर सकते, नॉन कॉग्निजेबल है. तो हम गिरफ्तारी 510 में नहीं करते और ना ही कोई 510 का चार्ज लगाता है. हम सीधा 34 पुलिस एक्ट में चले जाते हैं. वो हमारे पास एक मच बेटर ऑप्शन है. पहली बात तो कॉग्निजेबल है, हम कैसे भी उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, सजा भी ज्यादा है. सो वी विल टेक दैट. आई विल टीच यू 34 व्हेन आई कम टू सीआरपीसी. आई विल मेक अ रेफरेंस, मैं वो आपको सिखाऊंगा. आई होप नाउ एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस एंटायर लॉ फ्रॉम सेक्शंस 503 टू 510. ये सारा लॉ था ऑफेंसेस अगेंस्ट द माइंड. वी आर थ्रू विद नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आईपीसी. हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एंड की तरफ आ रहे हैं, आईपीसी खत्म होने वाली है. अब हम शुरू करते हैं एक लास्ट सेक्शन जो यहां का है इस आईपीसी का, सेक्शन 511. पूरा चैप्टर में एक ही सेक्शन है. दिस लास्ट चैप्टर, चैप्टर 23.
Chapter 23, Attempt. We now start the law of attempt. There are 4 distinct stages of a crime. There's the formation of an intention to commit a crime. Then, after my mind is made up, I prepare to commit that crime. प्रिपरेशन के बाद मैं अटेम्प्ट करता हूं. अगर अटेम्प्ट सक्सेसफुल है तो वो एक्ट बन जाता है. अगर वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल ना हो तो वो अटेम्प्ट ही रह जाता है. As a general rule, the first stage is never punishable. Having an intention to commit an offense is not punishable. How can we look into the mind of another? As Bacon says, even the devil knoweth not what goes on in the mind of a man. Since we don't know what is going on in the mind of a man, this is the reason why intention in IPC is not punishable. However, when two intentions come together and become an agreement, then that agreement can be taken as an act. In the offense of conspiracy. In the offense of conspiracy, two intentions combine to become an agreement. To commit an offense. That agreement itself is taken as actus reus. But otherwise, intention and single intention, of course, is not punishable in IPC. After I have formed an intention, I start working towards achieving the ends of my intention. For that purpose, I start taking step forward towards achieving my end. When I say I take a step forward, I start preparing. When I say I start preparing, preparation is not the ultimate act. It is the penultimate act. जैसा कि मैं अपने अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर रहा हूं जो मुझे बैटल लड़नी है. A person has made an intention to poison his wife. He now goes and procures poison. Is this punishable? IPC में preparation as a rule is not punishable. It's only punishable in few cases. Waging a war against India preparation. Collecting arms and men preparation. हम देख चुके हैं. Preparation for dacoity. हम देख चुके हैं. Forgery के हम इंस्ट्रूमेंट्स के इकट्ठे कर रहे हैं. Preparation. 3-4 जगह सिर्फ preparation punishable है. It's only in very serious offenses that even preparation is going to be made punishable. As a general rule, preparation is not punishable.
Why? It's too remote. I may have a change of mind. मैंने प्रोक्योर कर लिया पॉइजन, वाइफ को मैं अपने डालने वाला था. Suddenly I remember, no, she's doing so much from me. No, I'll not do it. I have a change of heart. I have a change of mind. But the problem comes that there is a very thin line. I have taken the poison to the dining table. Is it an attempt? We don't know. I have put the poison in a sweet dish. खीर में डाल दिया मैंने. क्या ये अटेम्प्ट हो गया? मैंने अब उसको उसके सामने रख दिया. ये अटेम्प्ट है. तो क्वेश्चन ये उठ रहा है, किसको अटेम्प्ट माने हम? देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन प्रेपरेशन एंड अटेम्प्ट. एक इंग्लिश लॉ में एक केस डिस्कस किया हुआ है. आर वर्सेस टेलर, 1895 का केस है. ये बहुत अच्छा एक अटेम्प्ट है टू एक्सप्लेन द डिफरेंस. आर वर्सेस टेलर में एक नेबर की दुश्मनी थी दूसरे नेबर से. वो उसका फसल कटी हुई पड़ी थी, हे स्टैक. वो वहां गया, अपने जेब से पहले उसने माचिस खरीदी थी. दैट वाज प्रिपरेशन, नो डाउट. उसके खेत में गया. क्वेश्चन अरोज वेदर दिस वाज प्रिपरेशन और दिस इज अटेम्प्ट. जेब से माचिस निकाली. क्या ये अभी भी प्रिपरेशन है कि अटेम्प्ट हो गया? माचिस चलाई, माचिस जला के अब वो फूंक भी मार सकता था, बिकॉज ही जला के वो कहता नहीं उसकी इतनी मेहनत है, मैं क्या करने जा रहा हूं. फूंक मार सकता है. थिन लाइन है. पर वो जैसे माचिस जलाता है, सामने देखता है कि उसका नेबर बैठा हुआ है और वो उसको पता ही आएगा. वो फूंक मार गया था, वो बड़ी ठंड है. जब अब उसने फूंक मारी और बुझाई माचिस, आर वर्सेस टेलर ने कहा वो अटेम्प्ट हो चुका था. यही लड़ाई है हमारी प्रेपरेशन और अटेम्प्ट की, क्योंकि ये जो ग्रे एरिया है बिटवीन प्रेपरेशन और अटेम्प्ट. क्योंकि अगर ये प्रेपरेशन है तो पनिशेबल नहीं है, पर अगर ये अटेम्प्ट है तो हमेशा पनिशेबल है. आई एम सॉरी. अगर मेरी सिर्फ इंटेंशन है, वो आईपीसी में पनिशेबल नहीं है. मैंने बताया आपको, हाउएवर दो इंटेंशन जब इकट्ठी हो जाती हैं और एग्रीमेंट बनाती हैं, तब इंटेंशंस पनिशेबल है कॉन्स्पिरेसी में. Preparation as a general rule is not punishable because I may any time rescind my decision to commit the offense. In other words, preparation is too remote from actus reus. Though it is a step forward, but it is not the actual step forward, it is just a penultimate step. But moment I attempt, मैंने तीर चला दिया, it is always punishable. The first act of IPC, which is always punishable, is attempt. अटेम्प्ट के अंदर अब अटेम्प्ट पूरा नहीं हुआ. अटेम्प्ट पूरा नहीं हुआ, विक्टिम की अच्छी किस्मत हो सकती है, मेरी बेवकूफी हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है.
तो चाहे मेरी बेवकूफी है या विक्टिम का अच्छी किस्मत है, उसका बेनिफिट एक्यूज को नहीं मिलेगा। बिकॉज अटेम्प्ट अगर पूरा हो जाता वो तो एक्ट बन गया था। दैट इज अ रीजन व्हाई एन अटेम्प्ट इज ऑलवेज पनिशेबल इन आईपीसी। Attempt is the first act which is always punishable in IPC. Preparation is punishable only in very serious offenses. Otherwise, preparation as a general rule is not punishable. और यहीं से हमारी ट्रबल शुरू होती है, because if preparation is not punishable, then I have to come to a conclusion whether my act falls under preparation where it is not punishable, or does it come under attempt which is punishable. यही लड़ाई है और इसीलिए इस टॉपिक में सबसे ज्यादा एम्बिग्यूटी है। Let's go to the basics and let me quickly clarify. Asghar Ali Pradhan versus Emperor, 1933 Privy Council. There are four distinct stages. There are four distinct and successive stages of a crime. Firstly, formation of an intention to commit a crime. Second, preparation for commission of the intended crime. Third, attempt to commit it. And fourth, if the third stage is successful, then the act is complete. I like to quote the Supreme Court. K. Venkat Rao versus State of Andhra Pradesh. This is a landmark on attempt. K. Venkat Rao versus Andhra Pradesh, 2004 Supreme Court. It does not take a mere will to commit an offense unless there is some external act. In other words, mere intention is not punishable. Preparation means the penultimate act in the commission of an offense. As a general rule, it's not punishable. As the remoteness it has with the actual act and the chances of the accused to rescind his decision due to remorse or fear or any other mental, physical or extraneous reasons. If preparation is made punishable, it would lead to harassment of so many persons. Kailash Chandra versus State of Assam, 2003 Guwahati High Court. The reason for not punishing preparation is that it is too remote to the completion of the intended offense. Preparation is perceived as a harmless act. However, in serious offenses, for example, under section 122 IPC or 126 IPC, preparation of any offenses against the state or making or possession of instruments for counterfeiting coins or government stamps, sections 233 to 235. Or preparation for committing dacoity, 399. Or possessing counterfeit instruments, material, etc. for forgery,
These are the only instances where preparation is made punishable. The first act in IPC which is always punishable is attempt. The question arises, what is an attempt? An attempt to commit an offense is an intended but unfinished crime. To quote Kenny, Kenny, it is an act which a person does towards the commission of the offense. However, he is hindered by circumstances beyond his control. To quote Chief Justice Cockburn, Cockburn is one of the Chief Justices whose quotations are quoted a lot by Honorable Supreme Court also. So in the words of Chief Justice Cockburn, Cockburn, the word attempt clearly conveys with it the idea that if the attempt had succeeded, the offense charged would have been committed. As far as the effect of an attempt is concerned, we have K. Venkat Rao versus State of Andhra Pradesh, 2004 Supreme Court. An attempt to commit a crime poses no lesser danger to the legally protected interests than does the completed crime. IPC has not defined attempt. However, to quote the Supreme Court, in the K. Venkat Rao case, it's a landmark, I told you, the word attempt is not itself defined and must therefore be taken in the ordinary dictionary meaning. It may be defined as that which, if not prevented, would have resulted in the full consummation of the act attempted. An attempt is an inchoate crime. INCOHATE. What is an inchoate crime? Inchoate crime वो होता है जो अकेला नहीं खड़ा हो सकता. If I say attempt किस चीज का? मर्डर का. So जो अकेला कोई सेंस नहीं बनाता है, उसको एक टांग, इसको वन लेगेड कहते हैं, तो दूसरी टांग चाहिए. तो कई बार आ जाता है ना इनकोहेट क्राइम्स के ऊपर. सो जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन एज गिवन बाय ग्लैनविल विलियम्स. An inchoate crime is a crime committed by doing an act with the purpose of effecting some other offense. An inchoate is a crime committed by doing an act with the purpose of effecting some other offense. Or if I was to quote George Fletcher, FLETCHER, an offense, an inchoate offense is an offense that is relative to the offense in chief. Main offense का साथ ही उसकी टांग होती है. Attempt in IPC is treated in 4 ways. 4 तरीके से ट्रीट किया है. पहला वो केसेस जहां पे एक्ट अटेम्प्ट इकट्ठे पनिशेबल है. So we have 4 categories of attempts. IPC treats attempt in 4 different ways. Those category of offenses where the act and attempt are punishable in the same section.
For example, Section 121, whoever wages a war against India or attempts, whoever commits dacoity or attempts. So 121, 124, 124A, बहुत सारे हैं, डिकॉइटी, रॉबरी बहुत है. सो जहां पे बहुत सीरियस ऑफेंसेस हैं वहां एक्ट और अटेम्प्ट को बराबर का दर्जा दिया गया है, बराबर की पनिशमेंट है. तो वहां अटेम्प्ट भी उतनी ही पनिशमेंट रखता है जितना एक्ट रखता है. सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस. सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस इज दोज अटेम्प्ट के जहां पे अटेम्प्ट को सेपरेटली डील किया गया है. तो वो ऑफेंसेस तो पहली कैटेगरी कौन से ऑफेंसेस हो गए? जहां पे एक्ट और अटेम्प्ट एक ही सेक्शन में डील, सेम सेक्शन में डील कर रहे हैं और सेम सजा है. दूसरे ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे अटेम्प्ट का सेक्शन ही डिफरेंट है. कौन से हैं वो? फॉर एग्जांपल 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 308 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 393. तो ये सारे जो हैं अटेम्प्ट टू रॉबरी वगैरह, ये सारे के सारे अटेम्प्ट जहां सेपरेट दिए गए हैं. तो दूसरी कैटेगरी होगी वो ऑफेंसेस की जहां अटेम्प्ट सेपरेटली अलग सेक्शन दिया गया है. तीसरा, जहां अकेला अपना ये अटेम्प्ट ही सिर्फ पनिशेबल है, जहां एक्ट पनिशेबल नहीं है. ऐसा कौन सा है जहां एक्ट सब पनिशेबल नहीं है? अटेम्प्ट है, सुसाइड नेचुरली. सो अटेम्प्ट टू सुसाइड 309. तो थर्ड कैटेगरी है जहां एक्ट पनिशेबल नहीं है बट उसका अटेम्प्ट पनिशेबल है, 309. एंड लास्टली, अब जो बाकी सारे बच गए वो सब आएंगे अब 511 आईपीसी जो अब हम पढ़ रहे हैं. सो लेट मी क्विकली रिवाइज. अटेम्प्ट को हम 4 क्लासिफिकेशंस में बांट सकते हैं. पहला क्लासिफिकेशन उनको डील करता है जहां पे अटेम्प्ट और एक्ट एक ही सेक्शन में मेंशन्ड है और इक्वल पनिशमेंट दी गई है. जितने भी सीरियस ऑफेंसेस हैं, वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, रॉबरी, डिकॉइटी, सब में आ जाता है. दूसरी कैटेगरी अटेम्प्ट की वो है जहां पे एक्ट अलग पनिशेबल है और अटेम्प्ट अलग पनिशेबल है, जैसा कि मैंने बताया अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह. तीसरी कैटेगरी जहां सिर्फ अटेम्प्ट पनिशेबल है, एक्ट पनिशेबल नहीं है, एक ही है ऐसा, अटेम्प्ट टू सुसाइड. अब इनके अलावा जो भी बच गए हैं, सारा रेजिड्यू, वो सारा आएगा अब 511 आईपीसी में. सो आई होप नाउ एवरीबडी इज क्लियर ऑन दीज एस्पेक्ट्स. We'll take it up from here in my next lecture. Thank you. God bless.